Hello students, welcome to the class. This is the lecture series on partnership final account. In past some video lectures, you have learned about the partnership, its features, methods of capital account, trading account, profit and loss account and balance sheet. Through these video lectures, it would be easy for you to prepare partnership final account. Even you can share this video with your friends so that they can also learn to prepare partnership final account. In this lecture, I will explain some adjustments related to the partnership final account. Adjustment. The adjustments is the additional information which is provided after the completion of trial balance. All adjustments must be considered and must be given proper effect in the final account of the partnership firm. Because after giving effect of the adjustment, you will get clear picture of the business. All adjustment must be given to effect, that is debit and credit. Additional business information provided after completion of the trial balance for preparation of final accounts are known as adjustments. To get a clear view and real result of business done in the trading year, some other business information which do not find place in the trial balance are required to be considered while preparing final account. Adjustment एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने के बाद, प्रिपेयर होने के बाद आपको दी जाती है. ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है वो सारा आपको मिलता है एज एन एडजस्टमेंट. आपको एडजस्टमेंट की प्रॉपर इफेक्ट देने के बाद ही बिजनेस का क्लियर पिक्चर मिलता है. कितना नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो एडजस्टमेंट कंसिडर करने के बाद ही पता चलता है. दिस एडजस्टमेंट आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन प्रॉपर इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट. फॉर एवरी एडजस्टमेंट आइटम, double effect, that is debit and credit, are given in the final account. Now let's see the adjustments. First adjustment is closing stock. The unsold goods on the last day of the accounting period is referred as closing stock. This is always valued at cost or market price, whichever is less. साल के लास्ट दिन जो बिज़नेस के पास स्टॉक पड़ा है गुड्स का, उसका वैल्यूएशन होता है, उससे कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक दो प्राइस में वैल्यूड होता है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, एंड यू हैव टू कंसिडर दैट प्राइस विच एवर इज लेस. लेट्स सी द इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड. नोट, closing stock is always valued at cost price and market price, whichever is less. जो less है cost price और market price से, वही price आपने consider करना है. In trading account credit side, buy closing stock, and in balance sheet asset side you have to write closing stock. Outstanding expenses. Expenses payable, expenses due but not paid. The expenses which have been incurred during the year but not paid in this current year are unpaid or outstanding expenses. जो करंट ईयर का एक्सपेंस है जो अभी भी पे नहीं हुआ है, इसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. Expenses you will always get either in trading account or profit and loss account debit side. Second effect will be given in balance sheet liability side, because business have to pay these expenses afterward, and this is one kind of liability for the business. Let's see the example. Outstanding salary. Outstanding salary. Salary you will get in profit and loss account debit side. So first effect, profit and loss account debit side, you have to add in salaries and you have to mention the word outstanding salary. सेकेंड इफेक्ट ऑन लायबिलिटी साइड, यू हैव टू राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी. आपने सैलरी में ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी.
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप उसको रिकॉर्ड करोगे एज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड एक्सपेंस, expenses paid in advance, expenses paid but not due. Prepaid expense means the expense which is paid before it's due. It means this is the next year expense which you have paid in the current year. That's why it is known as a prepaid expense. Expense you always get in trading or profit and loss account. So first effect in trading or profit and loss account debit side less from particular expense, आपने उसको माइनस करना है एक्सपेंस में से. Second effect balance sheet asset side, because this expense you have paid in advance, that's why it will be recorded on the asset side of the balance sheet. Prepaid wages. Wages you will always get in trading account. So first effect will be given in trading account debit side to wages less prepaid wages. Prepaid wages को आपने less करना है wages में से. Second effect asset side prepaid wages you have to record on the asset side. Income received in advance, pre-received income, income received but not due. The income related to the next accounting year but received in current year is known as a income received in advance. जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है लेकिन आपने करंट ईयर में ही उसको ले लिया है, इसलिए उसको कहेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम. Income you will always get in profit and loss account credit side. Therefore, first effect profit and loss account credit side less from particular income. वो इनकम में से आपने लेस करना है. Second effect in balance sheet liability side, because this income you have received in advance, that's why this is one kind of liability for the business. ये इनकम जो आपने एडवांस में ले लिया है, करंट ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन आपने पहले से ही उसको ले लिया है, इसलिए उसको रिकॉर्ड किया जाएगा लायबिलिटी साइड. लेट्स सी द एग्जांपल. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट आपने एडवांस में लिया है एंड दिस इनकम यू विल गेट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड बाय रेंट लेस प्री रिसीव्ड रेंट. रेंट में से आपने लेस करना है और लिखना है प्री रिसीव्ड रेंट. In balance sheet liability side, you have to record as pre-received rent. Outstanding income, income receivable, income due but not received. The income which have been earned in current year but not received during the year is known as outstanding income. करंट ईयर का इनकम है लेकिन अभी भी आपको मिला नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीवेबल जो आपको बाद में मिलने वाला है. दिस इनकम यू विल गेट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड टू पर्टिकुलर इनकम. वो इनकम में आपने ऐड करना है, प्लस करना है. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, because this is the income of the business which business will get afterward, that's why it will be recorded on asset side. ये इनकम जो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का इनकम है, बिजनेस को बाद में ये इनकम मिलने वाला है, इसलिए उसकी सेकेंड इफेक्ट जाती है बैलेंस शीट असेट साइड. लेट्स सी द एग्जांपल. कमीशन रिसीवेबल, कमीशन मिलने वाला है. सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन, in that you have to add, आपने प्लस करना है and you have to write word outstanding commission, या तो कमीशन रिसीवेबल भी आप लिख सकते हो. तो कमीशन में आपने प्लस करना है आउटस्टैंडिंग कमीशन. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड कमीशन रिसीवेबल, और यू कैन ऑल्सो राइट आउटस्टैंडिंग कमीशन. या तो आप कमीशन रिसीवेबल लिखो या तो आउटस्टैंडिंग कमीशन असेट साइड लिख सकते हो. New bad debt or further bad debt. Bad debt is the debt which are irrecoverable from the debtor is called as bad debts.
The amount of bad debts is one kind of loss to the business. Bad debts वो अमाउंट है जो डेटर के पास से लेना था बट नहीं मिल रहा है और आगे भी नहीं मिलने वाला है, ऐसा जब भी आपको लगता है तभी आप इसको रिकॉर्ड करते हो एज अ बैड डेप्ट, और ये बैड डेप्ट वन काइंड ऑफ लॉस है एंड देयरफॉर इट विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट बैलेंस शीट असेट साइड लेस फ्रॉम डेटर। डेटर के पास से लेना था पैसा लेकिन नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, इसलिए पहली इफेक्ट आपने देनी है बैलेंस शीट में असेट साइड लेस फ्रॉम डेटर, and this is one kind of loss, therefore it will be recorded in profit and loss account debit side add to bad debts। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेप्ट में आपने ऐड करना है। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेप्ट ऐड न्यू बैड डेप्ट, एंड इन बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स लेस न्यू बैड डेप्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेप्ट में आप इसको ऐड करोगे एज न्यू बैड डेप्ट, डेटर में से आपने उसको लेस करना है एज न्यू बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और न्यू आरडीडी। देयर आर सम डेटर्स ऑफ विच रिकवरी इज डाउटफुल। कुछ ऐसे डेटर्स है जिसके पास से पैसा मिलेगा वो डाउटफुल है। It may not be realized. For this purpose, such provision is created, which is known as reserve for doubtful debt. और इसीलिए एक प्रोविज़न बनाया गया है, इसे कहेंगे provision for doubtful debt. This provision is created on the experience of previous year. Last year जो पहले के साल है उनके बेसिस पर से ये प्रोविज़न बनाया गया है। So this is an anticipated loss for the company and therefore provision for doubtful debt is necessary। ये एक टाइप का लॉस है जब भी कंपनी को लास्ट ईयर्स के जो अकाउंट्स है उसके बेसिस पर से लगता है कि कुछ डेटर्स पैसा नहीं देने वाले हैं, उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा वो डाउटफुल है, तभी ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बनाया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द इफ़ेक्ट ऑफ दिस न्यू आरडीडी इज सेम like new bad debt, therefore first effect balance sheet asset side less from the debtor में से आप उसको लेस करोगे। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू बैड डेप्ट में आप इसको ऐड करोगे। सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट टू बैड डेप्ट, ये आपको ट्रायल बैलेंस में से मिलेगा, प्लस न्यू बैड डेप्ट ये एडजस्टमेंट से मिलेगा, प्लस न्यू आरडीडी। लाइक दैट इन बैलेंस शीट असेट साइड डेटर लेस न्यू बैड डेप्ट, डेटर में से सबसे पहले न्यू बैड डेप्ट माइनस करोगे। आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेप्ट द अमाउंट यू विल गेट ऑन दैट अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट न्यू आरडीडी विच आई हैव शोन इन द सर्कल। आपको सर्कल में जो अमाउंट मिलेगा डेटर में से सबसे पहले न्यू बैड डेप्ट्स माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है उस पर ही आपने न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है एंड दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर, और वो न्यू आरडीडी का अमाउंट आपने लेस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इट इज़ एन इंसेंटिव टू डेटर फॉर द अर्ली पेमेंट। डेटर को जल्दी पेमेंट करने के लिए कंपनी कुछ डिस्काउंट देती है। सच डिस्काउंट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ लॉस, ये एक टाइप का लॉस है। दिस डिस्काउंट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग द न्यू बैड डेप्ट्स एंड न्यू आरडीडी। ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है आपने कैलकुलेट कभी करना है, सबसे पहले न्यू बैड डेप्ट माइनस करना है, उसके बाद न्यू आरडीडी माइनस करना है, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट पर आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू डिस्काउंट अलाउड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आपने डिस्काउंट अलाउड में प्लस करना है। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड लेस फ्रॉम दी सैंड्री डेटर में से आप उसको लेस करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड ऐड न्यू डिस्काउंट।
न्यू डिस्काउंट आपने प्लस करना है। असेट साइड डेटर लेस न्यू बैड डेप्ट लेस न्यू आरडीडी, ये दोनों ही माइनस करने के बाद द अमाउंट विच यू विल गेट, ऑन दैट अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट न्यू डिस्काउंट। न्यू बैड डेप्ट्स न्यू आरडीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट पर ही आपने न्यू डिस्काउंट कैलकुलेट करना है एंड अमाउंट ऑफ न्यू डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड। अमाउंट जो न्यू डिस्काउंट को आपको मिलेगा वो आपने माइनस करना है। नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ बैड डेप्ट्स। फर्स्ट you will see profit and loss account debit side, 2 bad debts. This bad debt you will get from the trial balance debit side. ये बैड डेप्ट जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से मिल रहा है। ऐड न्यू बैड डेप्ट्स जो आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा। ऐड न्यू आरडीडी, दिस ऑल्सो यू विल गेट फ्रॉम द एडजस्टमेंट। तीनों को प्लस करना है एंड फ्रॉम दैट अमाउंट यू हैव टू डिडक्ट ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी आपने माइनस करना है, लेस करना है एंड दिस ओल्ड आरडीडी यू विल गेट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड मिलता है। इन बैलेंस शीट असेट साइड फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड डेटर्स, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल इफ एनी, ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर। ये दो एडजस्टमेंट अगर आपको दिए हैं तो दोनों में से कोई भी एडजस्टमेंट होगा या दोनों ही एडजस्टमेंट होगा, तो सबसे पहले इनको आपने प्लस करना है डेटर में। अनरिकॉर्डेड सेल एंड बिल रिसीवेबल डिसऑनर, दिस विल बी एडेड टू द डेटर। आफ्टर दैट फर्स्ट न्यू बैड डेप्ट्स विल बी डिडक्टेड। सबसे पहले न्यू बैड डेप्ट को आपने लेस करना है। आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेप्ट्स द अमाउंट यू विल गेट ऑन दैट अमाउंट आरडीडी विल बी कैलकुलेटेड। न्यू बैड डेप्ट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट सर्कल में दिखाया है, वो अमाउंट पर आपने न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है एंड दैट न्यू आरडीडी विल ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर। न्यू आरडीडी को माइनस करना है एंड आफ्टर दैट द अमाउंट you will get on that amount you have to calculate new discount. न्यू आरडीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है उस पर आपने न्यू डिस्काउंट कैलकुलेट करना है एंड दिस न्यू डिस्काउंट विल ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर। ये न्यू डिस्काउंट भी आपने डेटर में से लेस करना है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। जो हर साल असेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स असेट। फिक्स असेट पर आपने डेप्रिसिएशन लेना है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए लॉस है। देयरफॉर फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड लेस फ्रॉम पर्टिकुलर असेट। जो असेट पर डेप्रिसिएशन बोला रहेगा वो असेट पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड यू हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द असेट। जो असेट कहा है वो असेट में से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपने माइनस करना है। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज दिस इज़ वन काइंड ऑफ लॉस, so second effect will be given in the profit and loss account debit side. Example is given, charge depreciation on furniture. Furniture पर depreciation charge करने को कहा है। So first profit and loss account is given, then balance sheet. In balance sheet you can see on asset side furniture less depreciation. बैलेंस शीट में असेट साइड आप देख सकते हैं, फर्नीचर है उसमें से लेस करना है आपने डेप्रिसिएशन। एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड यू हैव टू राइट एज टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हियर यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। वो असेट का नाम भी साथ में लिखना है। सो हियर यू हैव रिकॉर्डेड एज टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। Interest on capital. If in partnership deed it is mentioned that interest on capital will be provided, then
In final account, the effect of interest on capital will be recorded. The interest on capital is one kind of expense for the business, and therefore it will be recorded first profit and loss account debit side. Second effect will be given in partner's capital or current account credit side, or in balance sheet liability side add in capital और current account. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा. सेकेंड इफेक्ट कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है. अदरवाइज इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल और करंट अकाउंट में ऐड करना है. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड यू हैव टू राइट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Two partners are there, A and B. The amount which they have contributed, on that amount separately interest will be calculated. For A you have to calculate interest, for B you have to calculate interest. You have to add that amount and then total amount will be recorded in the outer column of profit and loss account debit side. On credit side, capital or current account, you have to record as by interest on capital. For both partners, separate amount column is maintained. The A's interest on capital will be recorded in the A's column. B's interest on capital will be recorded in the B's column. Interest on drawing. Drawing is the amount or the goods which is withdrawn by the partner for their personal use. पार्टनर जब भी बिजनेस में से पैसा या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करेंगे उसको कहेंगे ड्राइंग. कंपनी में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ वन काइंड ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस. कंपनी ड्राइंग पर जब भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो ये इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए एक तरीके का इनकम है. Therefore, first effect will be given profit and loss account credit side. Profit and loss के credit side record करना है. Second effect partners capital current account debit side और balance sheet liability side less from capital current account. और second effect आप capital और current account के debit side record करोगे या तो balance sheet में liability side capital और current account में से आपने इसको माइनस करना है. Note, if date of drawing is not given, then interest will be charged for average 6 month. अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया है तो आपने एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है. एंड इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ गिवन देन फ्रॉम दैट मंथ यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर डेट दिया है तो वही दिन से वही महीने से आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है, और अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो एवरेज 6 मंथ का आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है. अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो जो आपको सम में दिया रहेगा मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइडेड बाय 12. 12 मीन्स आपको ईयर में 12 मंथ्स रहते हैं, इसलिए आपने उसको डिवाइड करना है 12 से. इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन देन 6/12, एंड इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ गिवन then from that month you have to calculate total month divided by 12. First effect profit and loss account credit side by interest on drawing. The amount of drawing of A, on that amount interest will be calculated, and on amount of drawing for B, on that amount for B interest on drawing will be calculated. It will be recorded first in inner column and total will be recorded in outer column. ए का जितना ड्राइंग है और बी का जितना ड्राइंग है उनका ड्राइंग के अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है फर्स्ट, और फिर टोटल आप आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करोगे. लाइक दैट इन पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ए के कॉलम में और बी के कॉलम में उनका अमाउंट आप रिकॉर्ड करोगे. Interest on loan taken. Loan taken is one kind of liability for the business, and interest on loan taken is expense for the business. Business may take loan from the bank, from the financial institution, etc. बिजनेस ने अगर बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई थर्ड पार्टी से लोन लिया है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, एंड ऑन दैट लोन
बिजनेस हैव टू पे इंटरेस्ट, और वो लोन पर बिजनेस ने इंटरेस्ट पे करना है. दिस इंटरेस्ट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस एंड देयरफॉर फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सेकेंड इफेक्ट add in loan taken balance sheet liability side. Here you can see in profit and loss account debit side you have to write to interest on loan taken, and in balance sheet liability side loan taken, in that you have to plus interest on loan taken, otherwise you can write outstanding interest. The amount will be added and total will be recorded in the outer column in balance sheet liability side. Interest on loan given. Loan given is an asset for the business, and interest on that loan given is one kind of income for the business. Therefore we can see first effect in profit and loss account credit side, second effect add in loan given in balance sheet asset side. In profit and loss account credit side you can see by interest on loan given, or you can write by outstanding interest on loan given. Second effect balance sheet asset side loan given add interest on loan. लोन गिवन में आपने इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस करना है एंड दैट विल बी एडेड इन द लोन. लोन में उसको प्लस करने के बाद यू हैव टू रिकॉर्ड टोटल इन आउटर कॉलम. टोटल आप रिकॉर्ड करोगे आउटर कॉलम में. In this lecture you have seen some adjustments with its effect in partnership final account. In next video lecture you will learn some more adjustments for the partnership final account.